Good morning, my dear student. Myself Amit Tripathi. Guys, you are welcome in today class. Dear student, in the last chapter, we have studied about the motion of any object in a straight line, and you also learn the motion, that means the speed or the velocity of the object will be increases with respect to time, and it also decreases with respect to time. The today topic, that means today we are going to start your new chapter, that is force and law of motions. Okay, before starting the chapters, I want to tell you outline of this chapter, that means what topics, that means which topics we have learned in these chapters. The first one is the introduction of force. Clear? Second is types of force. Third is law of motion. Law of motion means Newton's law of motion. Then inertia एंड मास, और इसका आप एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन. देन आफ्टर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum, and last is the numericals. Clear? First is introduction of force, that means what is the force, types of force, law of motion, that is Newton's law of motion. There are three laws, first, second and third, तीनों का स्टेटमेंट और इसका एप्लीकेशन क्या है. इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसका आप न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं, और इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स व्हाट इज़ द फोर्स. द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फोर्स. Clear? Before starting our topic, that is what is the force, I want to remind you the last chapter. In the last chapter we have learned about the motion, about the speed, about the velocity of the object, and we also learned the speed and velocity of the object will be changed with respect to time. That means speed and velocity will be increases or decreases. If we ask you what is the reason, what is the cause of the motion, how the speed or velocity of the object will be changed, that means it will be increases or it will be decreases. I hope some of them will able to give the answer of these questions and some are not. Okay, the reason of this, that means reason behind the motion, that is the force. Force is the cause of the motions. Clear? Force is the cause of the motions. Suppose that we give you example. Let this is the any object. हम इसको suppose करते हैं ये कोई object है, और ये आपका कोई प्लेन है. इस प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है. मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम ए रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. When we observe, the position of this object will be this, and after some interval of time the position of object will be changed. That means अभी ये यहाँ पे था, अब ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, दैट मीन्स इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन. क्लियर? बट द क्वेश्चन इज दैट
हाउ इट विल बी चेंज योर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज कैसे कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे ये जा रहा है, तो ये कैसे अपनी पोजीशन को चेंज किया, दैट मीन्स पोजीशन फर्स्ट से पोजीशन सेकेंड पे ये गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ द एक्सटर्नल कॉज। इस पे हमने कुछ एक्सटर्नल एफर्ट किया। क्या कर सकते हैं, सपोज दैट अगर हम ये सपोज करें, आपको ये दिख रहा होगा कि इस कॉपी के ये बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ मिड में रखा हुआ है। अगर मैं इसको पुश करूँ, पुश करने का मतलब इस पर हमने एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई किया, पुशिंग एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट पुशिंग किया, दैट मीन्स इसको हमने पुश किया तो ये क्या गया, इस कॉर्नर पे पहुँच जाएगा। क्लियर। सपोज दैट ये यहाँ पे है, अभी हमने इसको क्या किया, पुल कर लिया, अपनी तरफ पुल कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है किस कंडीशन में, जब हमने इस पे कोई एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई किया है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। क्लियर। सम ऑफ स्टूडेंट विल नो और विल गिव द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, द पुशिंग एंड पुलिंग एफर्ट, द पुश और पुल इज नोन एज द फोर्स, द पुश एंड पुल इज not known as the force. This is the incorrect or wrong definition. Clear. Push और pull कोई force नहीं होता है, ठीक है, that is the external effort on the object that affect the position, that affect the position of the object will be changed, or the shape or dimension of the object will be changed. If this is happened, then that external effort, that means that pushing or pulling effort is known as the force. Clear. तो ये आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है, मैं इसको आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। क्लियर है। तो चलिए अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एलिमेंट्री डेफिनेशन आप इसकी देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश that changes or tends to change the state of position or dimension of shape and size. Clear. This is the definition of elementary definition of basic definition of the force. Force is any external effort in the form of push or pull which trying to change or will change the position of the object or dimension, shape and size. Clear. तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि फोर्स की एलिमेंट्री डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। अब चलिए इसमें आपने अभी देखा यहाँ पे trying to change or tends to change the state of position or dimension and shape and size, तो इसको हम एक अलग हेडिंग पुट करते हैं और उसके थ्रू लर्न करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट मीन्स जो आप एक्सटर्नल काज, एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसका किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसको हम लर्न करते हैं। क्लियर। द पॉइंट नंबर 1 इज the first point, force can make a stationary body in motion. Clear. सेकेंड वन, मैं पहले पॉइंट यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फिर विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी इन रेस्ट, किसी मूविंग बॉडी को वो रेस्ट में कर सकता है। थर्ड वन इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, फोर्स कैन change the dimension
डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द कॉज ऑफ द force. There are 4 points we write here and we explain one by one. So point number 1, force can make a stationary body in motion. That means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी पोजीशन में है तो फोर्स उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आ सकता है. कैसे? एग्जाम्पल, सपोज दैट कोई एक फुटबॉल है ग्राउंड पे फुटबॉल अगर है तो वो किस पोजीशन में होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा. बट व्हेन यू किक और व्हेन यू हिट द फुटबॉल बाय योर फुट, द फुटबॉल will becomes in motion. What happens? How the football will become in motion? This is in rest position, but after hitting it, the football will become in motion. What happens? The phenomena, when you hit, that means you apply, that means you do some external effort on the football. That's why the football will becomes in the motion. Clear? आपने फुटबॉल को क्या किया? अपने पैर से हिट किया तो फुटबॉल क्या किया? मोशन करना स्टार्ट किया. बट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम द फुटबॉल विल आल्सो अगेन बिकम्स इन रेस्ट पोजीशन. वही आपने तो उसको हिट किया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, फुटबॉल ग्राउंड पे जा रहा है, बट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो थोड़ी दूर जाके फिर रुक जाता. क्यों? सपोज दैट अगर हम ये सपोज करें कि ये आपका फुटबॉल है, चलिए इसको हमने क्या किया, ये आपका है फुटबॉल, दिस इज द फुटबॉल, और यहाँ पे कोई एक प्लेयर है, वो क्या कर रहा है? इस फुटबॉल को अपने फुट से हिट किया, इसने इसको हिट किया तो फुटबॉल क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में ये मोशन करना स्टार्ट करेगा. अभी ये कैसा था? रेस्ट में था. जैसे ही इसने इसको हिट किया, प्लेयर ने फुटबॉल को हिट किया तो फुटबॉल किस कंडीशन में आ गई? मोशन में आ गई. ठीक है, दैट मीन्स इसने इस पर कुछ एक्सटर्नल एफर्ट किया. ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट क्या था? हिटिंग ऑफ द फुटबॉल बाय हिज फुट. ठीक है, दैट्स वाई द फुटबॉल विल बिकम इन मोशन, बट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम दिस विल आल्सो अगेन बिकम इन रेस्ट पोजिशन. वही सपोज दैट, चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ. ये आपका फुटबॉल है, अभी ये क्या था? मोशन कर रहा था, मान लिया ये मोशन कर रहा है. ठीक है, बट ये किस पे मोशन कर रहा है? इसका जो बॉटम सरफेस होगा वो ग्राउंड सरफेस को टच करेगा कि नहीं करेगा? और जब ग्राउंड सरफेस को टच करेगा तो इसके मोशन के अगेंस्ट, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नेचुरल फोर्स एक्टिव होगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव होगा जो इसके मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा, और मोशन का अपोज करेगा तो इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम द फुटबॉल विल अगेन बिकम इन रेस्ट पोजिशन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी इन रेस्ट. अभी देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल भी इसी को आप ले सकते हैं. फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी इन रेस्ट. अभी ये फुटबॉल कैसा था? मोशन में था, इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्टिव हो रहा था, वो क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स, और वो इसको क्या किया? रेस्ट पोजीशन में ले आ दिया. दूसरा आप क्या कर सकते हैं? जब आपकी बाईसाइकिल आप रन कर रहे हैं, ठीक है, या आप व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, तो सडनली जब आपको स्टॉप करना होता है तो आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं. किस पे? ब्रेक्स पे, पेडल पे आप अपने फुट से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल, स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल विल बी रिड्यूस्ड, एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, योर व्हीकल्स और योर कार विल बिकम इन रेस्ट पोजिशन. वो स्टॉप हो जाती है. क्लियर? तो अभी वो क्या कर रही थी? मोशन कर रही थी. जैसे ही आपने उसके ब्रेक के पेडल पे फोर्स अप्लाई किया तो वो कार क्या हो गई? रेस्ट पोजीशन में आ गई. ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे. देन थर्ड पॉइंट,
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। चलिए इसका भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे ये चेंज करता है। सपोज दैट आप अपने घर से साइकिल पे चले हैं, ठीक है, और स्कूल आपको आना है, ठीक है। चलिए मैं आपको आज एक बार स्कूल में ले आता हूँ। ये आपकी कलान से अखंड नगर का रोड है, ठीक है। क्या है ये? कलान टू अखंड नगर रोड, ठीक है। इस पे आप आ रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है। यहाँ आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, SBS चिल्ड्रन एकेडमी अर्गोपुर कलान, ठीक है। ये आपका गेट। चलिए आप स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल में आपको आना है, तो स्कूल में आने के लिए क्या करना होगा? अब आपको यहाँ से टर्न होना है, यहाँ से आपको टर्न होना है, यहाँ से आपको टर्न होना है स्कूल आने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से आप आएंगे, ये स्कूल का वे है। क्लियर? आपकी साइकिल जो आ रही थी वो ऐसे सीधे आ रही थी, आपने साइकिलिंग या बाईसाइकिल से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आप इस रोड से आ रहे हैं। क्लियर? अभी क्या है कि आपको इस स्कूल के अंदर एंट्री करनी है। ये स्कूल का गेट है, आपका ये स्कूल है, स्कूल का गेट है, इसमें आपको एंट्री करनी है। तो अब आप करेंगे क्या? ये साइकिल के हैंडल, सपोज करिए ये साइकिल के हैंडल है, आप साइकिलिंग करके आ रहे हैं, ऐसे पहुंच गए, अब आपको टर्न करना है। तो आप क्या करेंगे? अपने हैंड से इस हैंडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स कैसा अप्लाई करेंगे? जो आपका राइट हैंड साइड होगा, अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है तो उस पर आप क्या करेंगे? पुश करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड है उससे आप क्या करेंगे? पुल करेंगे। इससे अपनी तरफ खींचेंगे और इससे इसको पुश करेंगे, तो आपके साइकिल की हैंडल ऐसे मूव कर जाएगी। और जैसे ही आपके साइकिल की हैंडल मूव कर गई तो उस समय आपके मोशन की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई कि नहीं हो गई? डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल बी चेंज और नॉट? आई होप योर आंसर इज यस। क्लियर? तो ये हैंडल जैसे ये मुड़ी तो उसने मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और जैसे ही उसको चेंज हुआ तो आप स्कूल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज दैट आप अपने घर में हैं और कोई एक अच्छी सी थिंग्स, आप कहीं मार्केट में गए और कोई अच्छा सा एक टॉय, दैट मीन्स कोई एक खिलौना आप लेके आए, खूब अच्छा सा खिलौना, या ये सपोज करिए कि ये ग्लास का कोई आइटम है और इसके अंदर लाइटिंग वगैरह सब जल रही हैं, बहुत अच्छी सी लाइट इसमें लगी हुई है और ये ग्लो करती है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप एक ही पीस लेके आए, सिर्फ और सिर्फ एक पीस आप अपने लिए लेके आए। आपका छोटा भाई आ गया, आपकी छोटी सिस्टर आ गई, उसने कहा नहीं ये हमें भी चाहिए, ठीक है, और आपने कहा कि नहीं हमने अपने लिए ले रखा है, हम किसी को देंगे नहीं। क्लियर? तो अब होगा क्या? दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में झगड़े होंगे, आप उनसे नहीं बोलेंगे, वो आपसे नहीं बोलेंगे, आपकी शिकायत वो मम्मी से करेंगे, पापा से करेंगे। फिर होगा क्या? एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको गुस्सा आ जाएगा और आप ये कहेंगे कि अगर हम इसको फोड़ दें, इसको हम फेंक दें, ये ना रहेगा तो घर में झगड़े नहीं होंगे, हमें मम्मी से डांट नहीं सुननी पड़ेगी, हमें पापा से डांट नहीं सुनना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि बगल में कोई एक हैमर रखा था, आपने हैमर को उठाया और इस पे हिट कर दिया। जैसे ही आपने इसको हैमरिंग इस पे की, आपने जैसे इसको हैमर से हिट किया तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल पीसेस में ये ब्रेक हो जाएगा। अभी ये कैसा था? एक सर्कल शेप का था, अब ये कैसा हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया कि नहीं बंट गया? और सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ this object will be changed when you hammering this object. क्लियर? जब आपने इसमें हैमरिंग किया, दैट मीन्स आपने कोई एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई किया कि नहीं किया, और वो एक्सटर्नल एफर्ट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? हिटिंग का होगा, और जैसे ही आप इसको हिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है। तो मम्मी से आपसे झगड़ा नहीं होगा, मम्मी से आपको डांट नहीं सुननी पड़ेगी, भाई से आपका झगड़ा नहीं होगा, और आप दोनों में फिर जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा। क्लियर? तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप फीडबैक भी इसका दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फोर्स।
guys, there are two types of forces. The first one is balanced force and second one is unbalanced force. So here we write the first type, that is the balanced force and second is unbalanced force. सेकेंड आपका होगा, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ. चलिए, व्हाट इज द बैलेंस्ड फोर्स? फोर्स क्या है ये तो क्लियर है. एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश आर पुल विच ट्राइंग आर विल चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डायमेंशन, शेप एंड साइज. दैट इज नोन एज द फोर्स. बैलेंस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? आई होप यू ऑल आर नो. सपोज दैट, चलिए, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर. इस ऑब्जेक्ट पे एक साइड से इसको आप पुल कर रहे हैं और दूसरी साइड से आपका भाई पुल कर रहा है, ठीक है. चलिए, आपने क्या किया कि आपने कहा कि एक साइड से मैं इसको पुल करता हूँ, सेकेंड साइड से आप पुल करो, तो क्या होगा? दो कंडीशन हो सकती है. या तो ये ऑब्जेक्ट अपने सेम पोजीशन में होगा, दैट मीन्स जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में ये मेंटेन होगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. क्लियर है. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है या तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर सकता है, दैट मीन्स या तो ये आपके साइड जा सकता है या आपके भाई के साइड जा सकता है. दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है. पहला क्या है? या तो आपका ऑब्जेक्ट इस रेस्ट पोजीशन में होगा, दैट मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा. दूसरा, या फिर ये आपकी तरफ मूव हो सकता है या आपके भाई की तरफ मूव हो सकता है. किस कंडीशन में ये रेस्ट पोजीशन में होगा और किस कंडीशन में ये दूसरे साइड मूव कर सकता है? जब जो भी आपने एक्सटर्नल पुलिंग एफर्ट आपने अप्लाई किया है, सेम पुलिंग एफर्ट आपका भाई भी अप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन में होगा कि नहीं होगा? सपोज दैट ये हैंड, इस हैंड को सपोज करिए आप हैं और ये आपका भाई है, तो ये क्या होगा? अगर हम इसको ऐसे पुल करेंगे तो ये क्या होगा? अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा. दैट मीन्स दोनों साइड से आपने फोर्स अप्लाई कर रखा है, बट दोनों साइड से फोर्स में डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. आपने इससे इसको अपनी तरफ पुल किया है, सॉरी, और इस हैंड से आपने इसको इस साइड में पुल किया है. दोनों में पुलिंग की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, बट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज. दैट मीन्स the pulling effort applied by you and also applied by your brothers or sister, both are same in magnitude but opposite in direction. That's why the resultant force acting on this object will be zero. So the effect or the significant of this, the position of the object will not change. That means the position of the object will be in rest position. Clear है? क्लियर है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन दीज फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स. क्लियर. चलिए, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको फिगर से विद फिगर डिफाइन करता हूँ. सपोज दैट ये कोई प्लेन है, इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या है? F1. फोर्स को F से डिनोट करते हैं, फर्स्ट फोर्स है तो इसलिए F1, और ये है सेकेंड फोर्स दैट इज F2. दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड F2 इज इक्वल टू F1. ये हमने क्या किया? सपोज किया, ठीक है. इन दैट कंडीशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी जीरो. ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस पोजीशन में होगा? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन. दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर. देन हाउ यू डिफाइन द बैलेंस फोर्स? इफ two force acting on the object, or if the force acting on the object in opposite direction and equal in magnitude, then the resultant force of this object will be zero.
सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। क्लियर? और दूसरे आप सिंपल डेफिनेशन भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स acting on the object will be zero, that such type of forces which is act on the object, that is known as the balanced force। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ कंक्लूजन या आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, और ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड फोर्स does not change the position of object। Second, balance force does not change the position of the object, that means balance force किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को में चेंज नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन पॉइंट है बैलेंस फोर्स का। ठीक है? सेकेंड पॉइंट आपका होगा बैलेंस्ड फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ये देखिए है एक फोर्स आपका F2 इस साइड, F1 इस साइड, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। अगर कोई फोर्स इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वो लगता है क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg, और इसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है? तो ये अभी आपके लेवल की चीज़ नहीं है, इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया है। तो उसके अपोजिट कोई भी फोर्स अगर लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अगर लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, दैट फोर्सेस इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट, balanced force can change shape and size। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? ये इन दोनों के कंट्राडिक्शन पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं। ये फोर्स जो होगा बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, पोजीशन में चेंज नहीं करेगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है? बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। इसका क्या एग्जांपल है? चलिए सपोज दैट आपके पास एक बैलून है, बैलून को आपने उसमें एयर फिल किया तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? उसको दोनों तरफ से पुश करेंगे इस तरीके से, तो उसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर ये हम सपोज करें कि ये आपका बैलून है, चलिए ये आप बैलून है, अभी आपने इस पर पुशिंग एफर्ट दोनों तरफ से अप्लाई किया तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो गया? इसका ये शेप देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन में था, जब आपने इस पर पुशिंग एफर्ट दोनों साइड से अप्लाई किया तो इसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? शेप एंड साइड चेंज हो गई। और फोर्स कैसा लग रहा है? बैलेंस फोर्स ही तो लग रहा है। दोनों तरीके से आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी शेप एंड साइज क्या हो गई? चेंज हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये फर्स्ट पोजीशन में स्प्रिंग है। अब आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेच करेंगे दैट मीन्स दोनों साइड से स्ट्रेच करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या हो सकता है? आप इसको दोनों तरफ से कंप्रेस कर सकते हैं। अगर ये आपका है ए, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो इफेक्ट होगा दोनों तरफ से जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और कंप्रेस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो गया?
इसका सेपरेशन जो राउंडिंग है कॉइल है स्प्रिंग का, उसके सेपरेशन में आपको डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिला? जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी सेपरेशन इंक्रीज कर गई, कंप्रेस किया तो इसकी सेपरेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और जैसे ही आप इस एफर्ट जो आपने पुशिंग स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग एफर्ट आपने इस पे अप्लाई कर रखा उसको आप रिमूव करेंगे, ये फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। आ जाएगा ऐसे आप बैलून से जैसे ही आप वहाँ से आप अपने दोनों हैंड को हटाएंगे तो वो बैलून फिर अपने शेप में आ जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पॉइंट, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। नेक्स्ट पॉइंट होता है, अभी आपने देखा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए अभी सेम मैं इसी फिगर को यहाँ पे भी ड्रॉ, अभी क्या होगा? अब इसमें दो कंडीशन पॉसिबल हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है? आइदर F1 इज ग्रेटर देन F2 और सेकेंड इज F2 इज ग्रेटर देन F1। दो कंडीशन हो सकती है। दैट मीन्स चलिए अब एक बार मैं फिर से आपको फिर समझाता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने इसको क्या किया? पुल करना स्टार्ट किया। एक साइड से आप पुल कर रहे हैं, दूसरी साइड से आपका भाई या आपकी सिस्टर पुल कर रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? एक तो श्योर है क्योंकि वो आपसे छोटा है, तो ये होगा कि आपका जो पुलिंग एफर्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा, तो ऑब्जेक्ट आपकी साइड मूव कर जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा ये चाहते हैं कि वो खुश हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये करेंगे कि आपका जो पुलिंग एफर्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में लेस होगा, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी साइड मूव कर जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट उसकी साइड मूव कर जाएगा तो आपका छोटा भाई या जो आपकी छोटी सिस्टर होगी वो खुश हो जाएगी, है ना? तो हुआ क्या कि इसमें जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे दोनों की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी, बट मैग्नीट्यूड विल नॉट बी सेम। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इफ नॉट जीरो, that type of forces is known as the unbalanced forces. क्लियर? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्टिव है, कई फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तो वो फोर्स कैसे होंगे? अनबैलेंस फोर्स होंगे। और जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट उसी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। एंड ड्यू टू दिस अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट विल चेंज योर पोजिशन। दैट मीन्स cause of the motion is the force, and which type of force? That force is known as the unbalanced force. This is the important point. Cause of the motion is unbalanced force. Clear? Then how you define the unbalanced force? Force is acting on the object opposite direction or in same direction. तो simply आप define कर सकते हैं, if the resultant force acting on the object will not zero, that type of forces is known as the unbalanced forces. ये आपके सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में देखते हैं अगर F1 इज ग्रेटर देन 0, F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ग्रेटर है। यहाँ मैं इसमें मैग्नीट्यूड मॉड लगा देता हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। इस केस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट मूव इन, किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ F1, F1 की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट मूव इन डायरेक्शन ऑफ F2, F2 की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर? क्लियर है गाइस? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट ऐसे मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ और ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या था? बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्टिव है तो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा अनबैलेंस्ड, unbalanced force will responsible for changing the position of ऑब्जेक्ट। क्लियर? अनबैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। सेकेंड, बैलेंस फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? बैलेंस्ड
force may be opposite in direction but not have same magnitude. क्लियर? जो अनबैलेंस फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, सेम डायरेक्शन हो सकती है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या था? बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स में आल्सो चेंज शेप एंड साइज। क्लियर? अनबैलेंस फोर्स भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। हेलो। तो गाइज ये अनबैलेंस फोर्स था, क्या होता है, और ये बैलेंस फोर्स था। हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फोर्स के बारे में भी दिया, फोर्स क्या होता है और फोर्स की डेफिनेशन जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या होती है। ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। ओके, आई होप योर concept will be clear in today class. You all are give your feedback in the comment sections. Thank you. Have a good day.